Hello everyone, welcome to Botany Insider. So today we'll be discussing about some of the most important topics or the previous year questions that are related to the photosynthesis topic, and at the end of this lecture I'll be pointing out some of the important areas from where the topics are actually taken from for the questions. So this is about the photosynthesis, and I'll be uploading many videos related to the various topics, and in every video I'll be pointing out that which are the important areas from that particular topic, so that you would have a better understanding about कि अगर एक टॉपिक हम किसी टॉपिक को रीड कर रहे हैं so उस टॉपिक के अंदर इम्पोर्टेंट सेगमेंट क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट एरिया. दैट इज, लेट्स कंसिडर हमने फोटोसिंथेसिस कंप्लीट पढ़ा, बट उस फोटोसिंथेसिस के अंदर वी माइट हैव स्टडीड फॉर 60 to 70 पेजेस, लेट्स टेक एन अजम्पशन. लेकिन एग्ज़ाम के अंदर ये 60-70 पेजेस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट. वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि क्वेश्चन किस एरिया से उठकर आता है. हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बट from photosynthesis also what type of questions are asked, this is what we are going to discuss from these previous year questions, so that you get an understanding of the same. So today let's discuss about photosynthesis, and as and when we move forward we'll discuss about many more topics. So if you haven't yet joined me on Telegram channel, just search Botany Insider for the free mock test that I upload every week, and also for having the information about all the important videos that I upload on my YouTube channel. So this was about it. So let's discuss about the very first question. So the first question is that the quantum yield of the oxygen evolution during the photosynthesis drastically drops in the far red light. This effect is known as. So question के अंदर पूछा है कि जो क्वांटम का यील्ड है ऑक्सीजन एवोल्यूशन के टाइम पर इट ड्रास्टिकली ड्रॉप्स एट द फार रेड लाइट. इस इफेक्ट का नाम क्या है? सो द इफेक्ट्स नेम इज द रेड ड्रॉप इफेक्ट. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू. रीजन बीइंग, इस एरिया से बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं. सो from the photosynthesis, first important topic is about the red drop. We'll make a list of these topics at the end of this lecture as well. The second is about कि in the chloroplast the site of the coupled oxidation reduction reaction is. chloroplast के अंदर जो coupled oxidation reduction reaction होता है उसकी site क्या होती है? So it is the thylakoid space. This is also very important, that is किस एरिया में कौन सा पर्टिकुलर काम है वो हो रहा है. दिस इज वॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द रिएक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू. दैट इज, फोटोसिंथेसिस के अंदर वी हैव मेनी रिएक्शंस बीइंग देयर. सो उन रिएक्शंस की साइट क्या होगी? फॉर एग्जांपल जो C3 साइकिल है, C4 साइकिल है, C2 साइकिल है, इन साइकिल्स की लोकेशन क्या होगी? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो फ्रॉम दिस टॉपिक यू कैन अंडरस्टैंड कि ये सारे सब टॉपिक्स के ऊपर आपको ध्यान देना है. नेक्स्ट इज अबाउट द जेड स्कीम. ये क्वेश्चन आई गेस 4 to 5 टाइम्स रिपीट हुआ है इन द सेम फॉर्मेट, कभी पार्ट बी में और कभी पार्ट सी के अंदर. क्वेश्चन के अंदर वी हैव वन थिंग बीइंग आस्क्ड कि जेड स्कीम के इलेक्ट्रॉन्स का जो पाथवे है वो क्या होता है. सो अगर हम उसको एक बार अच्छे से लर्न करेंगे इट वुड बी वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द सेम. सो द क्वेश्चन सेज दैट द जेड स्कीम डिस्क्राइब्स द electron transport in the oxygen evolving photosynthetic organisms. The following direction or the direction of the electron flow is presented in the following sequence. ये चार sequence दिए हैं and we have to find out that which one of the following combinations is correct. कौन सा combination correct है. So अगर हम इसको अच्छे से analyze करें and if we remember about the pattern we will understand that third and fourth options are correct, or we can say C is the correct answer for this particular question. So इस एरिया से क्या पता चला? जो इलेक्ट्रॉन फ्लो का मूवमेंट है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी हैव दिस क्वेश्चन, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल स्टडीज C12O2 and C13O2 are used.
कौन सी फिजियोलॉजिकल स्टडी के लिए ये यूज़ किया जाता है. अगर हमें C3 और C4 साइकिल के बारे में थोड़ा पता होगा, वी कैन ईजिली गेट टू नो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ द C3 एंड द C4 पाथवेज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेम यू कैन सी, जो अभी हमने डिस्कस किया, जो पहले पार्ट सी में आया था वो पार्ट बी के अंदर आया है. सो यू कैन सी इलेक्ट्रॉन फ्लो का जो टॉपिक है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दिस वाज अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज. सो लेट्स जस्ट क्विकली मेक अ लिस्ट ऑफ द सेम. सो इफ वी एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, सो फोटोसिंथेसिस के जो क्वेश्चन पोटेंशियल एरियाज हैं, द फर्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन फ्लो के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर दैट द सेकेंड इंपॉर्टेंट इज अबाउट द साइट्स, कि कौन सी साइट में कहाँ क्या होता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इन दैट यू हैव टू लर्न अबाउट द C4, C2, C3 एंड ऑल द अदर वंस. एक और क्वेश्चन आया है एंड दैट वाज अबाउट जो C2 पाथवे होता है उसके अंदर वी हैव 3 ऑर्गेनेलीज बीइंग यूज्ड. सो पहली ऑर्गेनेली से दूसरी ऑर्गेनेली के अंदर कौन सा मेटाबोलाइट जाता है, दिस वाज आल्सो वंस और ट्वाइस आस्क्ड. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको वो वाला एरिया भी बहुत अच्छे से याद हो. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अबाउट द रेड ड्रॉप इफेक्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द फोर्थ इज अबाउट कि मैकेनिज्म जो है, दैट इज द मेन अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड द मैकेनिज्म. दैट इज अगर हम C4, C2 और कैम पाथवे लेट्स से अगर हम ये सब पढ़ रहे हैं, सो why there is C3 being present and why not C4, that is जो इनका डिफरेंस होता है, that is कि अगर C4 है तो C4 का CO2 कंपनसेशन पॉइंट ज़्यादा होगा या कम होगा, क्या नहीं होगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो फोटोसिंथेसिस के अंदर साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड ड्रॉप इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, साइकिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो के बारे में जो पाथवे है वो तो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो मेक श्योर यू हैव अ ग्रिप ओवर दिस टॉपिक. फोटोसिंथेसिस इज़ अ वेरी स्कोरिंग टॉपिक. अगर हम उसे एक बार ढंग से पढ़ेंगे यू कैन ईजिली गेट थ्रू इट. इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी इन दिस टॉपिक, मैंने एक प्लेलिस्ट भी कंप्लीट प्रिपेयर की है चैनल पे, इन विच वी हैव 7 वीडियोज़. यू कैन क्लियर ऑफ ऑल योर टॉपिक्स. एंड ऑल्सो हमने फोटोसिंथेसिस को एक रिविजन क्लास में भी कंप्लीट किया है. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन गो थ्रू दैट एज वेल. एंड इन एडिशन हमने एक मॉक टेस्ट भी करा है फोटोसिंथेसिस टॉपिक का ही. सो अगर आपको फोटोसिंथेसिस टॉपिक में कोई भी डाउट है, यू कैन टेक आउट द प्लेलिस्ट, द रिविजन क्लास एंड गिव अ मॉक टेस्ट. यू कैन easily get through all the questions of this particular topic. So this was all that I wanted to share in this particular video. I hope this video was helpful for you, and if you like this video, please do like, share it with your friends, and please subscribe to my channel. I'll be coming up very soon with the important points list of all the other topics as well. So thank you so much for watching, and I'll see you soon. Bye.